عرب قبائل میں بنو تمیم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ عہد نبوی میں اس قبیلے کا ایک وفد مدینے پہنچا تھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لایا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی شاخوں پر 4 امیر مقرر کیے تھے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: نمبر 1 زبرکان بن بدر، نمبر 2 صفوان بن صفوان، نمبر 3 قیس بن عاصم اور نمبر 4 مالک بن نویرہ۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں بعض امیر اسلام پر قائم رہے اور خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق کو زکوٰۃ برابر بھیجتے رہے۔ بعض نے تردد کیا، پھر اسلام لے آئے اور زکوٰۃ بھیجنا شروع کر دی، اور بعض اسلام سے باغی ہو گئے اور زکوٰۃ دینا موقوف کر دیا۔ ناظرین، یہ باغی مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس گروہ مرتدین میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ ناظرین، طلحہ بن خویلد سے فارغ ہونے کے بعد جناب خالد بن ولید نے بطلاح کا رخ کیا تاکہ مالک بن نویرہ کی گوشمالی کرے۔ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید کے ارادے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ مرتد تو ہو گیا تھا، مگر لشکر اسلام سے مقابلے کی اس کی سکت نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے قبیلے کو ادھر ادھر منتشر کر دیا، اور جب حضرت خالد بطاح پہنچے تو بستی خالی پڑی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر جناب خالد بن ولید نے گرد و نواح میں فوجی دستے روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ جس شخص سے ملے اسے اسلام کی دعوت دے، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ حکم حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کے تحت دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے 11 لشکروں کے سامنے روانگی سے پہلے فرمایا تھا کہ جب تم کسی بستی کے قریب پہنچو تو اذان دو، اگر بستی والے اذان کے جواب میں اذان دینے لگے تو ان سے کوئی طرز نہ کرو، اگر وہ اذان نہ دے تو انہیں قتل کر دو اور ان کا مال و اسباب چھین لو۔ جو قبیلہ اسلام لے آئے اس سے زکوٰۃ طلب کرو، اگر وہ دے دے تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی قتل کر ڈالو۔ جناب خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ اور دوسرے مرتدین قبائل کی تلاش میں جو فوجی دستے روانہ کیے تھے، وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں مالک بن نویرہ اپنے ہم خیال قبیلے بنو سلبہ بن یرجو کے ساتھ موجود تھا۔ یہ فوجی دستے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر جناب خالد بن ولید کے پاس لے آئے۔ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے سلسلے میں گرفتار کرنے والے دستے میں 2 رائے تھیں۔ دستے کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جب ہم نے بستی کے قریب پہنچ کے اذان دی تو بستی والوں نے اذان کا جواب اذان سے دیا۔ دستے کے زیادہ تر لشکریوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اذان کے جواب میں بستی والوں نے اذان نہیں کی تھی، اس لیے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس خیال کے جو لوگ مخالف تھے، یعنی کہتے تھے کہ انہوں نے اذان کے جواب میں اذان کی آواز سنی ہے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے زبردست صحابی ابو قتادہ بھی تھے۔ جناب خالد کے سامنے جب یہ 2 رائیں پیش کی گئیں تو وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے حکم دیا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں رکھا جائے۔ وہ رات بہت سرد تھی۔ بعض روایات کے مطابق جناب خالد بن ولید نے ایک شخص کے ذریعے لشکر میں منادی کرائی کہ اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ، مگر کنانا کی زبان میں مدافع کے معنی قتل کرنے کے ہوتے ہیں۔ بس انہوں نے اس منادی کے یہ معنی لیے کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر دو، اور اس غلط فہمی کی بنا پر قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ جب شور و غوغا کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت خالد بن ولید اپنے خیمے سے باہر آئے۔ دریافت حال پر بتایا گیا کہ غلط فہمی کی بنا پر مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو گرمی پہنچانے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا، جب خدا کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ناظرین، مالک بن نویرہ جس شخص کے ہاتھوں قتل ہوا اس کا نام زرار بن ازور تھا۔ زرار بن ازور اور ان کی بہن خولا بنت ازور نے آگے چل کے صلیبی جنگوں میں بہت نام پیدا کیا۔ صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب خالد کی بات بہت ناگوار گزری اور وہ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت خالد بن ولید کو بغیر اطلاع دیے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو قتادہ نے مالک بن نویرہ کے قتل کو غلط قرار دیتے ہوئے اس کا الزام حضرت خالد بن ولید پر لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا بیان بڑے غور سے سنا، مگر اس پر کوئی کاروائی نہ کی، بلکہ ابو قتادہ کو اپنے سپہ سالار فوج کو اطلاع دیے بغیر لشکر سے واپس آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ واپس جا کر حضرت خالد بن ولید کی ماتحتی میں حسب سابق کام کرتے رہیں۔
नाज़रीन, अबू कतादा के वापस जाने के बाद हजरत उमर ने खलीफा अव्वल से कहा, मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके खालिद ने बहुत बुरा किया। आप उनसे मालिक बिन नवेरा के कत्ल का किसास लीजिए और इन्हें माजूल कर दीजिए। जनाब अबू बकर हजरत उमर की बातें खामोशी से सुनते रहे, मगर जब हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद की माजूली और किसास पर बहुत इसरार किया तो खलीफा अव्वल ने फरमाया, उमर, खालिद ने एक इज्तिहादी गलती की है, इसलिए तुम अब उनके बारे में जुबान से कुछ ना निकालो। अल्लाह की इस तलवार को जिससे खालिद काफरों पर मुसल्लत किए हुए है, मैं नयाम में डलवाने वाला कौन होता हूँ। इसके साथ ही जनाब अबू बकर ने एक खत के जरिए जनाब खालिद बिन वलीद को दरबार खिलाफत में तलब किया। जब हजरत खालिद मदीने पहुंचे तो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो उनका सामना हजरत उमर से हो गया। हजरत उमर ने इन्हें मालिक बिन नवेरा के सिलसिले में बहुत सख्त कहा, मगर जनाब खालिद इस वजह से खामोश रहे कि शायद खलीफा के भी इनके बारे में ऐसे ही ख्यालात हों। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। जनाब खालिद ने उनके सामने पूरी तरह अपनी सफाई पेश की और अपना उज़र बयान किया। जनाब अबू बकर मुतमईन हो गए और इन्होंने बैतुल माल से मालिक बिन नवेरा का खून बहा अदा कर दिया। यूं ये मामला निपट गया। जनाब खालिद बिन वलीद पर यह इल्ज़ाम भी था कि इन्होंने मालिक बिन नवेरा के कत्ल के बाद उसकी बेवा उम्मे तमीम से शादी कर ली थी। इस सिलसिले में खलीफा रसूल ने खालिद बिन वलीद पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और उनसे कहा था कि वो उम्मे तमीम को तलाक दे दें। नाजरीन, तारीख से साबित है कि खालिद ने उम्मे तमीम को कुछ अरसा बाद ही तलाक दे दी थी। इस मसले को भी ख्वाम-ख्वाह तोल दिया गया और बहस का मौजू बना दिया गया। दरअसल अगर किसी आम लश्करी ने यह काम किया होता तो इस पर कोई तवज्जो ना दी जाती, मगर यह बात इस्लामी लश्कर के एक बड़े सरदार से मुताल्लिक थी, इसलिए इसे खूब उछाला गया। नाजरीन, ज़ाकम अल हरूफ के ख्याल में जब खलीफा अव्वल ने मालिक बिन नवेरा के कत्ल से खालिद बिन वलीद को बरीउज़्ज़ुम्मा करार देते हुए बैतुल माल से खून बहा अदा कर दिया और इन्हें उनके ओहदे पर बरकरार रखा तो खालिद पर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, और अगर उसके बाद भी कोई एतराज़ करता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के फैसले को तस्लीम नहीं किया, और मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल इसी तरह खलीफा अव्वल का खालिद बिन वलीद की उम्मे तमीम से शादी पर उनकी सरजनिश करना और इन्हें हुक्म देना कि वो छोड़ दें, इस किस्से का भी खात्म कर देता है। और फिर तारीख शाहद है कि जनाब खालिद ने उम्मे तमीम को जल्द या बदेर खलीफा वक़्त के हुक्म पर तलाक दे दी थी। नाजरीन, इस सिलसिले में एक ख्याल ये भी है, और वो हकीकत और इंसानी नफ्सियात के बहुत करीब है, कि जनाब खालिद ने उम्मे तमीम से इसलिए शादी की थी कि उम्मे तमीम के इस गम को दूर करने की कोशिश की थी जो उसे अपने शायर और बहादुर शोहर के मारे जाने पर हुआ था। इस शादी से जनाब खालिद बिन वलीद ने उम्मे तमीम को यह तासुर देने की कोशिश की थी कि वो अपने शोहर का गम ना करे, क्योंकि उसे मालिक बिन नवेरा से ज्यादा अजीम शख्सियत ने अपनी बीवी का दर्जा दिया है। नाजरीन, मालिक बिन नवेरा के सिलसिले में एक ईसाई हसीना सजा बिनते हारसा का किस्सा भी बहुत मशहूर है। सजा कबीला बनु तमीम की एक शाख बनु यरबू से ताल्लुक रखती थी। इसका कबीला बनु सगलब था जिसमें अक्सरियत ईसाइयों की थी और ये लोग इराक में आबाद थे। रवायत है कि सजा बहुत खूबसूरत थी, बेहद ज़हीनो फतीन थी। तख्तो ताज हासिल करने का सौदा बचपन ही से उसके दिमाग में समाया हुआ था। बस अपने हुस्नो जवानी से फायदा उठाते हुए उसने औबाश नौजवानों का एक बहुत बड़ा हल्का अपने गिर्द जमा कर लिया। फिर इसे किसी नौजवान ने मशवरा दिया या खुद उसके दिल में फतूर आया कि वो भी अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत का दावा करे और एक बड़ी ताकत की मालिक बन जाए। सजाह ने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अपने कबीले के जवानों के सामने ये दावा किया, यह क्या जरूरी है कि नबूवत हमेशा मर्दों को ही मिलती रहे और औरतों को इस हक से महरूम रखा जाए। चुनांचे खुदा ने इस दफा इस नाइंसाफी का खात्मा करते हुए एक औरत को यानी मुझे सदा बिनते हारसा को नबूवत के ओहदे पर फायज किया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं मुल्क अरब पहुंचकर मदीना को अपना मरकज बनाऊं। नाजरीन, सजा बिनते हारसा के दावा नबूवत करते ही इस कबीला बनु सगलब के तकरीबन तमाम लोग इस पर ईमान ले आए। जिस नौजवान ने भी सजाह के हुस्नो जमाल और फराख दिली का चर्चा सुना था वो उसके हल्का बगोश होने के लिए अपना कबीला और ईमान छोड़कर उसके पास पहुंच गया। इसके नतीजे में इसके गिर्द नौजवानों का एक बड़ा लश्कर इकट्ठा हो गया जो उसके हुस्न की वजह से उसकी नबूवत पर ईमान ले आया था। मुर्तद मालिक बिन नवेरा का ताल्लुक भी बनु तमीम से था, इसलिए सजा बिनते हारसा ने उसे हुक्म भेजा कि मेरी नबूवत और सियादत पर ईमान ले आओ, वरना मेरा लश्कर तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। नाजरीन, मालिक बिन नवेरा बहुत चालाक आदमी था।
फिर उसके कबीले की एक लड़की ने नबूवत का दावा करके इतना बड़ा लश्कर जमा कर लिया था, इसलिए उसने अपने ही आदमियों से जंग करना मुनासिब ख्याल ना किया और दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सजा को अपने यहाँ आने की दावत दी। जब सजा अपने लश्कर के साथ मालिक बिन नवेरा के इलाके में दाखिल हुई तो वो उसकी शानो शौकत और तदादे लश्कर को देखकर हैरान रह गया। मालिक बिन नवेरा मुर्तद तो हो ही चुका था, अब वो सजाह का हल्का बगोश भी हो गया और उसने सजा की नबूवत को तस्लीम कर लिया। फिर जब दोनों की गुफ्तगू हुई तो सजा ने इससे कहा, मुझे फरिश्ते के जरिए यसू मसीह ने हुक्म दिया है कि मैं मुल्क अरब में पहुंच के मदीने को अपना मरकज बनाऊं और फिर तमाम अरब को अपने हल्के में समेट लूं। नाजरीन, मालिक को उसके ख्यालात पहले ही मालूम हो चुके थे। आप सच्ची नबियां हैं। खुदावंदे यसू मसीह ने आपको जो हुक्म दिया है आप इस पर जरूर अमल करें, लेकिन आपको यह ख्याल रखना जरूरी है कि मदीना और उसके इर्द गिर्द नए मजहब इस्लाम का बोलबाला है। फिर इनके पास लश्कर भी बहुत बड़ा है। मदीना को सिर्फ इस लश्कर के जोर पर फतेह नहीं कर सकती आप। सजा बिनते हारसा ने घबरा कर पूछा, फिर तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मालिक बिन नवेरा ने उसे मशवरा दिया, मेरे ख्याल में आप मदीना का रुख करने की बजाय पहले बनु तमीम की दूसरी शाखों और उन कबाइल को ज़ेर करें जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं। इन कबाइल का ताउन जंग से भी और दोस्ती से भी हासिल किया जा सकता है। नाजरीन, सजा को मालिक बिन नवेरा का मशवरा बहुत पसंद आया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी राय से पूरा इत्तफाक है। मैं मदीना जाने का इरादा तर्क करती हूँ। अब बताओ मुझे किससे जंग करनी है। नाजरीन, मालिक बिन नवेरा को तलहा बिन खुवैलिद असदी और मसीलमा कज़ाब से ज्यादा खतरा था। इन दोनों ताकतों की मौजूदगी में मालिक बिन नवेरा का चिराग ना जल सकता था। तलहा की ताकत कुछ ऐसी ज्यादा ना थी, मगर मसीलमा कज़ाब इतना ज्यादा मजबूत हो चुका था कि उसका खात्मा किसी तरह मुमकिन न था। बस उसने सबसे पहले मसीलमा के खात्मे का फैसला किया और सजा को मशवरा दिया कि ऐ मेरी खूबसूरत और परी जमाल नबिया, यूं तो अरबों के बेशतर ग्रोह ऐसे हैं जिनसे दोस्ती करके ताउन हासिल किया जा सकता है, मगर हाकिम यमामा मसीलमा जो बनु बकर की शाख बनु खीफा से ताल्लुक रखता है, एक ऐसी ताकत है कि अगर उसे ज़ेर कर लिया जाए तो फिर आपके लिए मदीने का रास्ता खुल जाता है। मगर यह पस्त कामत और बद शक्ल मसीलमा जिसने नबूवत का दावा कर रखा है, इस कदर चालाक और मकार है कि बहुत मुश्किल से काबू में आएगा। मेरा मशवरा तो यही है कि आप इसका खात्मा करके इसके लश्कर पर कब्जा कर लें, फिर आप दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। नाज़रीन, सजा बिनते हारसा जो मालिक बिन नवेरा की लंबी चौड़ी तकरीर से उलझ रही थी, उसने मालिक के खामोश होते ही बड़े जोश से कहा, मैं मसीलमा पर हमला करके उसकी ताकत को मलिया मेट कर दूंगी। मालिक बिन नवेरा ने इसे टोका, नहीं मेरी गुलफाम नबिया, मसीलमा को शिकस्त देना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। उस पर हाथ डालने से पहले आपको अपनी ताकत का सही अंदाजा लगाना पड़ेगा और अपने लश्कर में इंतहाई जोशो खरोश पैदा करना होगा। फिर तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सजाह का लहजा बेहद यजमर्दा था। मालिक बिन नवेरा खुद बड़ा दिल फेंक और हुस्न परस्त वाक़या हुआ था। वो एक अच्छा शमशीर जन और इतना ही अच्छा शायर भी था। मालिक का दिल सजा बिनते हारस जैसी खूबसूरत दोशीज़ा को देखकर डोल कर रह गया था, मगर वो इसे हासिल नहीं कर सकता था और किसी ला हासिल चीज के लिए कोशिश करना भी वो हमाकत समझता था। उसके दिल में ये ख्याल जरूर था कि अगर मसीलमा कज़ाब का खात्मा हो जाए तो शायद वो सजाह को हासिल करने में कामयाब हो जाए। इसी ख्याल के तहत वो मसीलमा को सजाह के उन जोशीले जवानों के लश्कर से शिकस्त देना चाहता था जो सजाह पर जान दे देते थे। नाज़रीन, मालिक बिन नवेरा इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सजा ने इसे चौंका दिया। तुम किस सोच में पड़ गए हो मालिक? मालिक ने गहरी सांस लेकर कहा, सोच ये रहा हूं कि शायद तुम इस मकरूह इंसान को काबू में ना कर सको। सजा ने बड़े गरूर से कहा, क्यों? क्या वो हुस्न और खूबसूरती को पसंद नहीं करता? बहुत पसंद करता है। फिर भी मालिक झिझक के रुक गया। फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सजा बड़े नाज से बोली, मेरा तजर्बा मुझे बताता है कि जो शख्स शक्लो सूरत में जिस कदर बदहियत, खौफनाक और मकरूह होता है, उसका दिल खूबसूरती और हुस्न को इसी कदर पसंद करता है। तुम मेरी बात का यकीन करो मालिक, सांप का डसा शायद पानी मांग सके, मगर मेरे सहर का शिकार दम नहीं मार सकता। नाज़रीन, फिर इस शब्द सजा बिन हारिस तमाम रात मालिक बिन नवेरा से नामालूम क्या क्या मशवरे करती रही और इसके जवान और नौजवान लश्करी जो इसके सच्चे जानसार थे, वो शब भर मैदान में बेचैनी के आलम में घूमते रहे। सजा बिनते हारसा का यह तरीका था कि वो रात को सोने से पहले और सुबह को उठते ही अपने लश्करियों को अपना दीदार कराती थी।
इन दोनों औकात में पूरा लश्कर 10 कितारों में सफ बस्ता हो जाता था और सजा एक शान बेनियाजी से इनके दरमियान से मुस्कुराती और लजाती गुजरा करती थी। उसके शदाइयों के लिए उसकी ये मुस्कुराहट ही उनकी जान की कीमत थी, जिसके सहारे वो खुशी खुशी इस पर नसार हो जाते थे। नाजरीन, यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि ये वाक़यात खालिद बिन वलीद के तलहा बिन ख्वाल दस्ती और मालिक बिन नवेरा पर हमलों से पहले के हैं। झूठी मुद्दईया नबुवत और जनाब खालिद का किसी भी मैदान जंग में आमना सामना नहीं हुआ। जिस वक़्त जनाब खालिद इस झूठी नबिया को सजा देने के लिए इसके कबीले बनु सगलब में गए तो इन्हें मालूम हुआ कि नुसरानी मुद्दईया नबुवत सजा बिनते हारसा अपने पैरोकार के साथ यमामा के हाकम मसीलमा के पास जा चुकी है, जिसने सजा की तरह नबुवत का दावा किया है। सजा बिनते हारसा और मसीलमा कज़ाब के गठजोड़ जो शादी की सूरत अख्तियार कर गया था, इसके तफसीली जिक्र से पहले मसीलमा का कुछ जिक्र कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए हम एक बार फिर आपको हयात नबवी में ले चलते हैं। नाज़रीन, मसीलमा इलाका यमामा के कबीले बनु बकर की शाख बनु खीफा का सरदार था। यह बेहद बदसूरत, पस्ता कद और क्रीहल मंजर आदमी था। अरब के दीगर कबाइल की तरह इस कबीले का एक वफद भी दरबार रसालत में हाजिर हुआ था। इस वफद में मसीलमा भी शामिल था। मदीना पहुंच के दूसरे अरकान तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चले गए, मगर मसीलमा इनके सामान की रखवाली के लिए डेरे पर ही ठहरा रहा। वफद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद को कुछ माले मरहमत फरमाया। इस वक्त वफद के अरकान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हम अपने एक साथी को सामान की हिफाजत के लिए पड़ाव पर छोड़ आए हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हिस्सा भी वफद वालों को अता फरमाया और अरशाद फरमाया कि वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ा जाए। नाजरीन, सही मुस्लिम में मसीलमा का इब्तदाई हाल इस तरह बयान किया गया है कि 10 हिजरी में बनु खीफा का सरदार मसीलमा एक वफद के साथ मदीना आया। मसीलमा बदसूरत, पस्त कद, चालाक और मक्कार था। उसने अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अगर आप मुझे अपना जानशीन मंजूर फरमा ले तो मैं हल्का बगोशे इस्लाम हो जाता हूँ। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के अहकाम से तजावुज़ नहीं कर सकता। इस शर्त पर अगर तुम खजूर की छड़ी भी मांगो तो मैं ना दूंगा। नाज़रीन, उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की एक छड़ी थी और उस छड़ी को दिखाते हुए आपने इरशाद फरमाया था। नाज़रीन, जब ये वफद बनु खीफा वापस गया तो वहां पहुंचते ही मसीलमा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया और वफद से कहा, क्या रसूल अल्लाह ने तुमसे ये नहीं कहा था कि वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे सामान की रखवाली के लिए पीछे छोड़ दिया जाए? वो मेरा मर्तबा पहचानते थे और इन्हें मालूम था कि मैं इनके साथ नबुव्वत में शरीक किया गया हूँ। मसीलमा ने बाज मुकफ़े और मुसज्जे अबारतें घड़ के अपने कबीले वालों के सामने पेश की और इन्हें बताया कि इस पर आसमान से ये आयात नाज़िल हुई हैं। उसके साथ ही मसीलमा ने शराब, जना और तमाम बुरे कामों को उन पर हलाल करार दे दिया। इन बातों को सुनते ही उसके कबीले वाले उस पर ईमान ले आए और इन्होंने इसे नबी तस्लीम कर लिया और वादा किया कि वो उसका हमेशा साथ देंगे। अपनी कौम की तरफ से मुतमईन होने के बाद मसीलमा ने अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भेजा, जिसका तर्जमा है, यह खत मसीलमा रसूल अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मुझे नबुव्वत में आपका शरीक किया गया है। निस्फ ज़मीन मेरी है और निस्फ क्रैश की, लेकिन क्रैश बहुत ही ज्यादती करने वाली कौम है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खत का जवाब इन अल्फाज में भेजा, जिसका तर्जमा है, यह खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मसीलमा कज़ाब के नाम है। सलामती हो उस पर जिसने हक की पैरवी की। इसके बाद वाज़े हो कि ज़मीन अल्लाह ताला की मलकियत है, वो जिसको चाहता है इसका वारिस बनाता है। अंजाम उन्हीं का बेहतर होगा जो अल्लाह से डरते हैं। नाज़रीन, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मसीलमा कज़ाब का फितना बहुत ज़ोर पकड़ गया। इस फितने को भड़काने में अर्रजाल बिन गफू का बहुत ज़्यादा हाथ था। नाज़रीन, अर्रजाल हिजरत करके मदीना मुकीम हो गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर उसने कुरान और दीन की तालीम हासिल की। फिर जब बनु खीफा का वफद यमामा वापस जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफद के साथ अर्रजाल बिन गफू को कर दिया कि यह शख्स इन्हें दीनी तालीम देगा।
اس بے دین نے بنو خیفہ اور خاص کر مسیلمہ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بجائے خود بھی ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی، اور مسیلمہ کے جھوٹے نبی ہونے کا اعلان ہوتے ہی الرجال ان کے ساتھ ہو گیا، اور اس نے بنو خیفہ کے سامنے یہ شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ ناظرین، بنو خیفہ کے لیے الرجال سے بڑی اور کون سی شہادت ہو سکتی تھی؟ بس اہل یمامہ نے جوک در جوک مسیلمہ کی اطاعت شروع کر دی اور ایک زبردست فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کی طاقت میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ وسطی عرب کے بے دین قبیلے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ پھر عراق کی حسینہ سجا بنت حارثہ اسے مغلوب کرنے کے لیے مسیلمہ کے مرکز یمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مالک بن نویرہ نے سجا کو مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ مسیلمہ کو شکست دے دے تو پھر اس کے لیے مدینہ پر قبضہ کرنا مشکل نہ ہوگا۔